Our next chapter is chapter number 9, important cities of India. Okay. First, you know what is important cities of India. Important cities means that cities where population is very much large population. It means कि more than 1 million people population live there. That city is known as मेट्रोपॉलिटन सिटीज. उन सिटीज को हम क्या बोलते हैं? बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो अब इस बिग सिटीज में, इंपॉर्टेंट सिटीज में हम बिग सिटीज को कवर करेंगे एंड मेनली वी आर गोइंग टू कवर न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. ऐसे तो इन इंडिया देयर आर सो मेनी बिग सिटीज लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद. Okay, but now in this chapter we are going to cover only 4 big cities, metropolitan cities. First I am going to tell you about New Delhi. New Delhi, it is the, you all know, capital of India. New Delhi is the capital of India. Okay, and capital of India, and it is also National Capital Territory. NCT. Delhi is capital of India as well as National Capital Territory. NCT. And next is New Delhi को हम दूसरे फॉर्म में देखें तो NCR. Delhi is a very big city भी है, साथ में नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है. तो इसमें हम जब इसकी बात करते हैं दिल्ली की तो वी कवर सम अदर सिटीज, है ना. Then we use NCR. जब हम कुछ और सिटीज को कवर करते हैं उसमें तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं NCR, द नेशनल कैपिटल रीजन. NCR मीन्स द नेशनल कैपिटल रीजन. अब इस नेशनल कैपिटल रीजन में विच सिटीज वी आर इंक्लूडिंग? इट इज कंप्राइजेज ऑफ ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये तो दिल्ली के ही हो गए हिस्सा, 2 parts, and some other cities of other states, like जो neighboring states हैं उससे related जो cities हैं जो बिल्कुल दिल्ली के सटे हुए हैं, पास में हैं. They are फरीदाबाद, गुड़गांव बोलते हैं उसको, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ and Noida. These 3 are from Uttar Pradesh, and Faridabad also. Gurgaon, it is from the state of Haryana. I am going to tell you about the location of Delhi. Okay, Delhi is located. You can see in this map. It is located here. This portion. Okay, Delhi is located in the west bank of the river Yamuna. इट मीन्स कि ये यमुना रिवर के वेस्ट साइड में, वेस्ट बैंक पे, किनारे पे बसा हुआ है. एंड द स्टेट्स विच कवर, विच बॉर्डर दिल्ली आर हरियाणा फ्रॉम 3 साइड. यू कैन सी हियर लाइट कलर, हरियाणा फ्रॉम 3 साइड एंड 1 साइड उत्तर प्रदेश. इट मीन्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ बॉर्डर हरियाणा, ओनली 1 स्टेट, एंड east side there is Uttar Pradesh. So it is bordered by 2 states, Haryana and Uttar Pradesh. Now people and government of Delhi. Delhi is the capital of India. New Delhi is the capital of India, as you know. So there are 2 governments. One is central government because it is the capital of India. So central government offices are there, prime minister, presidents, other central government union ministers are there. They live and their offices are in New Delhi. And side by side there it is also NTC, National Territory. So there is legislative assembly and governor and chief minister and other ministers, state government ministers are, their offices are there and their houses are there, they live there. Okay, now climate. What type of climate in Delhi?
Delhi climate is extreme climate, extreme climatic condition. It means कि in summer they experience very hot and in winter they experience very cold. समर में बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे आजकल यहाँ पे है वैसा ही सीजन होता है, और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी, एंड मॉनसून में बारिश होती है. एंड इन द समर देयर इज अ हॉट विंड ब्लो फ्रॉम राजस्थान दैट इज नोन एज लू, जो कि यहाँ पे भी आप लोग पंजाबी में लो बोलते हो. तो गर्म हवा भी चलती है गर्मी के दिनों में. तो दिस इज द क्लाइमेट ऑफ न्यू दिल्ली. नाउ इंडस्ट्रीज, which type of industries in Delhi? Mainly information technology industry, banking, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल बैंक्स हैं वहाँ पे, एंड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मशीन्स की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, लेदर प्रोसेसिंग ऑल्सो देयर, एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, यानी दवाइयाँ बनाने की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली में हैं. अब आते हैं, बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यानी कि दिल्ली में विजिटिंग प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ पे कि टूरिस्ट जाते हैं. क्योंकि ये इंडिया का कैपिटल है एंड इट इज़ ऑल्सो, सो दैट इज़ वाई इंटरनेशनल लेवल पे पीपल केम हियर, यहाँ आते हैं विजिट के लिए. तो जो विजिटिंग अट्रैक्शंस है उसमें मेनली एक तो रेड फोर्ट. रेड फोर्ट मतलब लाल किला जिसको कहते हैं. इट इज मेड बाय रेड स्टोन एंड हु मेड शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां, ही वाज नोन एज इंजीनियर किंग. उन्होंने वो रेड फोर्ट बनवाया था लाल पत्थरों से. दूसरा आता है इंडिया गेट. इंडिया गेट ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस because our soldiers are there. our soldiers के मेमोरी में, जो हमारे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर में मर गए थे उनकी मेमोरी में वहाँ पे स्टोन से गेट बनाया गया है जिसको इंडिया गेट बोलते हैं. एंड वहाँ पे हमेशा मशाल जलती रहती है उनकी याद में. थर्ड आ जाता है गांधी जी. एवरीवन नोज ही वाज द फादर ऑफ द नेशन. तो गांधी जी के जो समाधि है वो राजघाट प्लेस है. देयर इज राजघाट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस. अनदर इज वन मॉस्क, जामा मस्जिद. जामा मस्जिद इज इंडियाज लार्जेस्ट मॉस्क. ओके, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद. वो भी कहाँ पे है? दिल्ली में है. नेक्स्ट इज गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा. It is also very large Gurudwara of India, famous. Again next Lotus Temple, that is Bahai Temple जिसको बोलते हैं, वो भी वहाँ पे दिल्ली में ही है. इसके अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी की जहाँ डेथ हुई थी वहाँ पे उनके मेमोरी में प्लेस बनाई गई है जिसको लोग देखने जाते हैं. और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं दिल्ली में जो देखने लायक है. जंतर मंतर है एंड वो ओल्ड पुराना किला है. बहुत सारे प्लेसेस हैं दिल्ली में जो कि लोग देखने बाहर से दूर दूर से आते हैं. अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की. लैंग्वेजेस, चूँकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी, फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया पीपल केम हेयर एंड फॉर माइग्रेशन से आते हैं फॉर द जॉब, फॉर अर्निंग, एंड दैट इज वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज बोथ लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट दे पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. बहुत सारी लैंग्वेजेस की डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, डिफरेंट पीपल आर देयर, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन. दैट इज वाई दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज वहाँ का नहीं है हिंदी इंग्लिश के अलावा. खाने की बात करें तो चूँकि अगेन वेरी इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया पीपल आर लिविंग देयर, कमिंग एंड लिविंग देयर. दैट इज वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस, different types of food are there, people are eating. And
लास्ट में रह जाता है कि एंड नाउ एट द एंड आई वांट टू से यू वन मोर थिंग कि दिल्ली इज द इंडियाज बिजिएस्ट मेट्रो रेल। इट मीन्स कि वर्ल्ड बिजिएस्ट मेट्रो रेल। दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन चलती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बसेज हैं, लोकल ट्रेन तो है नहीं, बसेज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल्स हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो ट्रेन चलाई गई, जो कि आज की डेट में वर्ल्ड का बिजिएस्ट रेल मेट्रो ट्रेन दिल्ली का माना जाता है। थैंक यू। आवर नेक्स्ट टॉपिक of metropolitan cities is Mumbai, and Mumbai, as you know, Mumbai is the capital of which state? Maharashtra. Mumbai is the capital of Maharashtra. Now what is the location of Mumbai? Mumbai कहाँ पे है? ओके, जैसे दिल्ली जो है वो हरियाणा और यूपी के बीच में है, वैसे ही मुंबई की लोकेशन क्या है? मुंबई इज लोकेटेड, you can see in this map, it is Maharashtra. This is Maharashtra state, and Mumbai is located here. It is on the side of Arabian Sea. This is Arabian Sea, blue color water bodies, and this is western coastal plain. So here is Mumbai. It is west coast and on the side of Arabian Sea. Okay, this is the location of Mumbai. Now, earlier Mumbai was known as Bombay. बॉम्बे नाम आप मूवीज़ में भी, गानों में भी सुनते हो, एंड आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉम्बे बोलते होंगे। वाई? बिकॉज अर्लियर मुंबई वॉज नोन एज बॉम्बे, बट आफ्टर सम टाइम ऑफिशियली its name was changed in 1995 when the name of Bombay to Mumbai, it is in 1995, यानी 1995 में मुंबई का नाम बॉम्बे से मुंबई रखा गया। ओके, अब दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को हम इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वाई? बिकॉज so many industries are there, share markets are there, entertainment center जिसको कि हम कहते हैं बॉलीवुड। ओके, तो जिसकी वजह से अर्निंग मुंबई की जो है मैक्सिमम, इंडिया की अर्निंग मुंबई के थ्रू होती है। दैट इज वाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम इसके क्लाइमेट पे। ओके, तो क्लाइमेट कैसा है मुंबई का? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज, यू कैन से मॉडरेट, हम कह सकते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड इन समर। जैसे अभी गर्मी का दिन है, इस पीरियड में वार्म एंड ह्यूमिड, बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर द वाटर बॉडीज। कहाँ पे लोकेटेड है? वाटर बॉडीज के नज़दीक है। दैट इज वाई द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इन द समर वार्म एंड ह्यूमिड। ठीक है, अब वार्म एंड ह्यूमिड तो समर में है, एंड विंटर कैसा होता है? हमारे यहाँ की तरफ बहुत कोल्ड नहीं होता। इट इज़ प्लीजेंट, यू कैन से, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। वहाँ पे स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शौकिया लोग पहन लेते हैं, अदरवाइज नो नीड हाफ स्वेटर या उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो क्लाइमेट कैसा है वहाँ का? मॉडरेट कह सकते हैं। एंड बारिश, रेनफॉल इन द मानसून सीज़न लाइक जून टू सितंबर अक्टूबर, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो ये रहा वहाँ का क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट इज मुंबई में ऑफिशियल, चूँकि दिस इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ वाई चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आर their residents are there, offices are there, and they live there and control all the state Maharashtra. Now next is industries. In Mumbai
there are so many industries like oil industry, cotton industry, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आते हैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एंड मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, एंड सम अदर, फॉर एग्जांपल BARC, this is a research center. What is the full form of BARC? Bhabha Atomic Research Center. This is also there where in Mumbai. And TIFR, what is the full form of TIFR? Tata Institute of Fundamental Research. These two research centers are also located in Mumbai, and IIT College, this is also in Mumbai. Okay, and one most important thing in Mumbai is oil refinery. Oil refinery यानी कि वहाँ पे ऑयल, जिससे कि खाना पकाने वाला ऑयल नहीं, मोटर कार्स चलते हैं, पेट्रोल जिसको कहते हो आप, तो पेट्रोलियम रॉ पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं, उसको भी वहाँ पे निकालते हैं। कहाँ पे? मुंबई के नज़दीक ही वाटर बॉडी में से, उसको मुंबई हाई के नाम से जानते हैं, तो वहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है, एंड देन इट इज़ रिफाइंड इन रिफाइनरी, और जिससे कि हमें तेल, केरोसिन, स्प्रिट, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो these are the industries of Mumbai. Now come to the next topic, their tourist attractions. Okay, because it is located near the water bodies Arabian Sea, so there are so many beaches. Okay, beaches में Marine Drive और जुहू, चौपाटी, as I have told, so many beaches in Mumbai. One beach is Juhu, Chowpatty, another, and Marine Drive beach is very much famous. It is also known as Queen Necklace because in the night time when the lights are illuminated, that time they are look like a queen necklace. जैसे रात के टाइम में शेप उसका आर्क है, आर्क शेप होने के कारण ऐसे शेप में है ये बीच, दैट इज वाई जब रात में यहाँ पे लाइट्स जलती हैं तो इट्स लुक लाइक अ क्वीन नेकलेस. ओके, तो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ मेरिन ड्राइव. नाउ अनदर फेमस बिल्डिंग इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. इट इज़ अ रेलवे स्टेशन. वहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. एंड देयर इज़ ऑल्सो एयरपोर्ट बाय दिस नेम, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट. एंड अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर लाइक प्रिंस वॉल्स म्यूजियम, नेहरू प्लानिटेरियम, एंड one most important tourist attraction is गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया, जब भी मुंबई की कोई पोस्टर आती है तो यू कैन सी देयर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट बिल्डिंग. तो गेटवे ऑफ इंडिया इज़ अ फेमस प्लेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन. वाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए थे तो उनके जाने के बाद वहीं से एंटर किए थे और वहीं से वो निकल के चले गए थे अपनी कंट्री में. तो वहाँ पे एक गेट बनाया गया जिसको कि हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज़ हैंगिंग गार्डन. वहाँ पे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है. और बच्चों के लिए एसल वर्ल्ड है, एसल वर्ल्ड. एंड तारापुर वाला एक्वेरियम है वहाँ पे. और इसके अलावा हिंदी इंडस्ट्री, जब आपको मैंने बताया बॉलीवुड इंडस्ट्री है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. एंड राजीव गांधी सी लिंक, इट इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट प्लेस ऑफ मुंबई, जो कि केबल से ब्रिज को बनाया गया अरेबियन सी में. एंड अब खाने की बात कर लेते हैं कि वहाँ की मुंबई की जो डिशेज़ हैं, दे आर भेलपुरी एंड श्रीखंड. भेलपुरी आप सभी लोग घरों में भी बना लेते हो. दिस इज़ वेरी फेमस फूड आइटम.
and Shrikhand, sweet dish. Shrikhand is also very famous of Mumbai. And language, which language is spoken in Mumbai? You can say Marathi and Konkani. Two language, Hindi, English तो सभी बोलते हैं, हर जगह बोली जाती है, but their local language is Marathi and Konkani.